Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Servotech Power Systems Limited Q2 and H1 FY25 earnings conference call hosted by Ventura Securities Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need any assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star and then 0 on your touch-tone phone. Please note, this conference is being recorded. The company is today represented by Mr. Raman Bhatia, Founder and Managing Director, and Mr. Vipin Kaushik, Finance Controller. I would now like to hand over the call to the Managing Director of the company, Mr. Raman Bhatia, for opening remarks. Thank you, and over to you, sir. Thank you, madam. Good morning, everyone. Thank you for joining us today to discuss Servotech Power Systems Limited performance in the second quarter of financial year 2024-25. I am thrilled to share that we had performed well in this quarter. We have dedicated significant effort to developing new ideas and sustainable growth strategies, and simultaneously have executed orders in hand, and the results are evident. Let's begin with the financial highlights. Our total income for the quarter reached a robust 200 crore, representing a substantial growth of 131.1% compared to the same quarter of financial year 23-24. The government emphasized on reducing dependency on fossil fuel imports through EV drive mission, and it has been created a favorable market for us, and we have successfully secured big orders for DC fast chargers from all major oil marketing companies and different OEMs of automobile. The rising popularity of EVs and the increasing demand for robust charging infrastructure has been key drivers of our growth. In second quarter, our company's EBITDA stood at INR 19.29 crore, which reflects a growth of 223.2%, and net profit also soared by 260% and reached on 11.24 crore, which is 95% of whole financial year 23-24 profit. Hope you all are well aware that in the last 2 years we have tried to change EV fast charger market with our innovative and cost-effective solutions, and now we want to do the same in solar range product range. So beyond the numbers, we are delighted to report notable advancement with the successful launch of our latest range of solar inverters, including hybrid and microinverter range, energy storage systems, and solar pump controllers. These products represent our team dedication to pushing the boundaries of sustainable energy technology and enhancing the accessibility of clean power solutions. In tandem, we commemorated a pivotal milestone for Servotech's EV infrastructure division, underscoring our rapid stride in the electric vehicle sector. Together, these achievements underscore our strategy's commitment to innovation and reinforce our position as a leader in the renewable energy and EV infrastructure landscape. Our channel and distribution vertical is expanding our dealers and distributor network rapidly to increase our market reach for our solar products also. Our mission is very clear that produce green to live green, and our objective is to produce world-class products at a competitive price with the next level of user experience. We are investing heavily in research and development to create innovative, high-quality products and that meet global standards. We are eager to expand our business internationally. We are deeply committed to clean energy and are investing in EV charging and the other green energy solutions for sustainable future. Overall, we are extremely pleased with our second quarter performance. We are optimistic about the future and believe our focus on innovation, quality, and sustainability will continue to drive our success. Thank you to our dedicated team, valued customers, and supportive shareholders and the suppliers. I am now ready to address any question you may have. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. If you have a question, please press star and 1 on your telephone keypad and wait for your turn to ask the question.
If you would like to withdraw your request, you may do so by pressing star and 1 again. Dear participants, if you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad. The first question comes from Agastya Dave from CAO Capital. Please go ahead. Agastya Dave. हेलो हेलो. मैं ऑडिबल सर? हाँ जी, बताएं सर. नमस्ते सर. भट्टे जी, आपको बहुत बहुत बधाई सर. रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड एंड आपके काफी जो आपने माइलस्टोन्स बताए थे क्वार्टर में दिखेंगे वो सब आई थिंक प्रीटी मच सब कुछ दिखा है इसमें सर. तो आपको बहुत बहुत बधाई. सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे था. 18 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए रेगुलेशंस निकाले हैं चार्जिंग स्टेशन के लिए और बहुत सारी बातें बोली इंक्लूडिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप and expansion of charging infrastructure to malls and other locations. सर ये कितना उसमें कुछ 10,000 करोड़ की भी बात की गई है. 10,700 करोड़ के आसपास का एलोकेशन है बजट से. तो मुझे ये जानना था सर कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा इसमें. ये कब से इसका इम्पैक्ट आप जैसी कंपनियों को दिखने लगेगा कि ऑर्डर्स आने लगेंगे. इसमें से नोडल एजेंसी कौन सी है? क्या ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये बीपीसीएल एचपीसीएल के थ्रू ही होंगे या कोई और नोडल एजेंसी बनाई गई है? और तीसरा सर ये आपको क्या लगता है सर ये पॉलिसी कैसी है? इसमें कुछ चेंजेस सर चार्जिंग इंफ्रा साइड में भी किए गए हैं जो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया टेक्निकल साइड पे. तो आपका फीडबैक से ही समझ में आएगा सर कि कैसी है पॉलिसी. तो दैट इज माई फर्स्ट क्वेश्चन सर. सर जब भी कोई भी पॉलिसी डिक्लेयर की जाती है तो उसकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको बनाने में और उसको एक फ्रेमवर्क में बदलने में और एग्जीक्यूशन प्लान बनाने में थोड़ा टाइम लगता है. तो इसमें अभी स्टेट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं वो अपनी खुद की नोडल एजेंसीज बना रही हैं. जैसे स्टेट एजेंसीज हैं ऑलरेडी. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सोलर के लिए जैसे बहुत सारी एजेंसीज हैं. अगर मैं यूपी में बात करूं तो यूपी नेडा है. अगर मैं आपसे बात करूं हरियाणा की तो हरेड़ा है. इस तरीके की बहुत सारी एजेंसीज हैं अलग अलग जगह. तो इसकी भी कुछ एजेंसीज बनाई जाएंगी नहीं बनाई जाएंगी इन सब के बारे में भी बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है. तो आज इसके ऊपर कोई भी बात करना शायद ठीक नहीं है और इस प्लेटफॉर्म पे तो वैसे भी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दीज ऑल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. तो जब उसका कुछ भी क्लियरेंस आएगी तो फिर इस पर बात करेंगे. जी सर थैंक यू सर. सर दूसरा क्वेश्चन था जो आपने सोलर के नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं. ये सर आपने कुछ आई थिंक 2 प्रेस रिलीजेस मिनिमम तो मैंने देखी ही है जो आपने लास्ट 10 दिनों के अंदर डाली है. तो इसमें सर प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफी यूनिक लग रहे हैं. इसमें से कुछ आप बता सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कब तक हमारे रेवेन्यू में ट्रांसलेट होगी? इसमें फाइनल बायर कौन रहेगा सर? और क्या ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू जाएगा या ये टेंडर बेस्ड प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं उसमें ये यूज किए जाएंगे या प्राइवेट सेक्टर में जो ईपीसी प्लेयर्स हैं आप उनके साथ टाइप करके उनको बेचेंगे? सर इसमें आपका बिजनेस मॉडल क्या है और इसमें रेवेन्यूज कब तक सिग्निफिकेंट वे में हमारे पीएनएल में रिफ्लेक्ट करेंगे? सर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट सभी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो सूर्य घर योजना है उसमें जितने भी तरीके के मॉडल्स हैं चाहे वो सीएनआई है कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल की बात करें या हम एंड यूजर की बात करें या हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें या हम प्रोजेक्ट्स की बात करें इसमें वो सारी मॉडल रेंज है जो सब में काम आएगी. ठीक है. तो ये हर तरीके से बेचा जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से ही बेचा जाएगा डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स में भी बेचा जाएगा और टेंडर्स में भी बेचा जाएगा या इंस्टॉल किया जाएगा. अच्छा राइट. अच्छा. जहां तक रही बात कि ये कैसे नजर आएगा तो मैं आपको ये कह दूं कि जो हम अभी कर रहे हैं उन सब के अंदर अभी हम डिपेंड थे और लोगों के ऊपर और कुछ प्रोडक्ट थे जो अवेलेबल जो रेंज में थे ही नहीं. तो जो रेंज में आ गए हैं वो एडिशन करेंगे रेवेन्यू के अंदर और जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे थे वो न्यू टेक्नोलॉजी से चेंज हो जाएंगे. तो दैट मीन्स आपको इसका जो इम्पैक्ट है एक तो इम्पैक्ट करंटली आना शुरू हो गया है उसमें जो हम ऑलरेडी कर रहे थे वो रिप्लेस हो गए. और जो दूसरा है जो वैल्यू एडिशन करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी बढ़ाएगा वो मुझे लगता है कि 4th क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा या मिलना चाहिए ऐसा मैं समझ. 4th क्वार्टर आपने कहा Q4? हाँ Q4 की बात कर रहा हूँ. 24 की बात करेंगे. परफेक्ट सर. आखिरी क्वेश्चन सर ऑन चार्जिंग स्टेशन ऑन द चार्जिंग प्रोडक्ट साइड वहां पर आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी कितना हो गया ये क्वार्टर में रन रेट?
और नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में और कितना रैंप अप करेंगे सर? अभी सर हमारा जो यूज कर पा रहे हैं वो हम 60% के आसपास कर पा रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम अपनी जो कैपेसिटी है वो हम इमीडिएट बढ़ा भी सकते हैं, इसको डबल भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का आपस में जुड़ना बहुत जरूरी है। जैसे हम चार्जिंग स्टेशन दे रहे हैं तो पहले एक बायर चाहिए जो कहेगा कि मैं सीपीओ बनाऊंगा, यानी कि वो कहता है कि मैं चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहता हूँ। तो पहले एक ऐसा आदमी होना चाहिए या एक ऐसा एजेंसी होनी चाहिए जो पहले इस बात की एश्योरेंस दे कि मैं चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहता हूँ। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी हो सकती है, वो कोई जो है इंडिपेंडेंट प्लेयर भी हो सकता है, करेक्ट, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। तो अगर ऐसी एजेंसी पहले होनी चाहिए, फिर उसके बाद वो किससे खरीदेगी, वो हमारे जैसे मैन्युफैक्चर होने चाहिए। फिर आता है जमीन जहां पर वो लगाया जाएगा, यानी कि वो जगह होनी चाहिए जहां पर वो बनाया जाएगा। वो हाईवे हो सकता है, वो कोई ढाबा हो सकता है, वो कोई मॉल हो सकता है, वो कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, करेक्ट जी। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है डिस्कॉम। डिस्कॉम का मतलब आपके पावर कनेक्शन और वहां पर आपके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब तक ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी तब तक आप सिस्टम नहीं लगा सकते, तब तक आप उसको चार्जिंग स्टेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, करेक्ट है। तो इस सिस्टम के अंदर अभी जहां हम लैक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। यानी कि जितने भी कस्टमर है, चाहे वो एचपीसीएल है चाहे वो बीपीसीएल है, जितना मटेरियल हम उनको सप्लाई कर चुके हैं अभी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा इसकी इंस्टॉलेशन में। दैट मीन्स हमसे लिए हुए सिस्टम भी अभी तक पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं। अच्छा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा दिल्ली पे तो आगे तब तक ये रैंप अप नहीं हो पाएगी। तो मैं प्रोडक्शन रैंप अप करके क्या करूंगा, वर्किंग कैपिटल फंसा के बैठ जाऊंगा या इन्वेंट्री खड़ी करूंगा, वो काम है नहीं हमारा, राइट। तो इसलिए उसका इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा Q3 पे भी नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक पिछले इंस्टॉल नहीं होंगे मैं अगला मटेरियल कहां दूंगा। अच्छा अच्छा, तो आप सिर्फ Q3 थोड़ा सा लाइक देख रहे हैं जी, Q3 में थोड़ा सा सेल्स कम देख रहे हैं सर, इस सब की वजह से? ऐसा नहीं कह रहा, नहीं, मैं इस पे अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि वो कम है ज्यादा, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा आएगा ना। आपने एक सवाल पूछा था जिसका मैं इम्पैक्ट कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कि कोई भी कस्टमर है वो कोई माल लेके घर पे तो रखेगा नहीं, आखिर तो चार्जिंग स्टेशन बनने हैं। तो मैं अगर अपनी स्पीड बढ़ा भी दूंगा तो एक सिद्धांत है मैनेजमेंट का, जब तक सारी चीजें फ्लॉलेस नहीं होंगी तब तक चीज आगे नहीं जा सकती ना। तो उस फ्लॉलेस का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। जी सर, मैं समझ गया सर। थैंक यू वेरी मच सर, और आपको दिवाली की शुभकामनाएं सर। थैंक यू। आपको भी थैंक यू। Thank you, sir. The next question comes from Mr. Jitesh Parmar, individual investor. Please go ahead. हेलो सर, थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे नंबर थे इस क्वार्टर के। सर मुझे मेरे 2-3 सवाल है। मैं थोड़ा बिजनेस को थोड़ा अच्छे से समझना चाहता हूँ। तो सर पहला सवाल तो मेरे आपके प्रेजेंटेशन में है, ओके। तो मैं जो है आपने प्रोडक्ट वाइज जो शेयर दिया है फॉर Q2 ब्रेकअप, उसको आपने जो ग्रोथ प्लान है जो रेवेन्यू वाइज, उन दोनों को मिला के समझने की कोशिश कर रहा था, ओके। और अगर हम वो दोनों को मिला के समझने की कोशिश करें तो सर हमारा जो सोलार का जो है इन द ग्रोथ प्लान स्लाइड पे सर, वो शेयर, ओके, और जो 15% अभी हमारा है वो दोनों मतलब आपस में मेल नहीं खाता। जब हम सब साथ में मिला के देखे तो मतलब आप जरा समझाएंगे कि ये कैसे समझे हम, और हमारा सोलार का शेयर कैसे रहेगा? सर मैं आपके सवाल को फिर से समझना चाहता हूँ। आप जब बात कर रहे हैं देखो, अगर 2-3 चीजों को मिक्स कर दिया है, आप मुझसे किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड की बात करें या तो करंट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, तो मैं एक एक बात का जवाब दे पाऊंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, क्या सवाल है? मैं ये कहना चाहता था 2024-25 की अगर हम नंबर देखें ऑन ग्रोथ प्लान प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू जी, उसमें अगर हम सोलार के देखें नंबर तो अराउंड 225 करोड़ है, करेक्ट। और अभी हमारा एक मिनट 225 करोड़ कहाँ देखा है आपने? कहाँ देखा है सर? ये ग्रे कलर का जो ग्रीन कलर का जो बार है ऑन सोलार प्रोडक्ट रेवेन्यू इन लैक्स, ओके, 24-25, ये इसमें लिखा है 22500। किसकी बात कर रहे हो? ग्रोथ प्लान प्रोडक्ट रेवेन्यू। सर मैं मेरी रिक्वेस्ट है, मैं भी अब कंफ्यूज हो रहा हूँ आपके साथ। आप किस स्लाइड की बात करें तो स्लाइड का नंबर बताएं या मुझे समझाएं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इस 39 नंबर, ओके, जो आपके पैक जो आपने यहाँ पे मतलब आपने प्रेजेंटेशन शेयर किया था, ओके, उसमें स्लाइड का नाम था ग्रोथ प्लान
कोलन प्रोडक्ट रेवेन्यू वाइज, ओके, जी उसमें जो 6 फिगर है, 6 अलग अलग चार्ट है, उसमें जो तीसरा चार्ट है सोलर प्रोडक्ट रेवेन्यू इन लैक्स। जी हाँ हाँ अगर सर उसमें हम 24-25 का अगर देखें जी नंबर, ओके, तो वो अराउंड 225 करोड़ के आसपास आता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये स्लाइड 100% गलत है। ये एक ऑप्टिमिस्टिक फिगर थी जो गलत तरीके से लगा दी गई है। अगर आप देखेंगे तो इसको चेंज किया गया है और इसकी रेक्टिफिकेशन भी डाली जा रही है। ओके सर। ये जो है हाँ ये नंबर कुछ और थे, ये गलत है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं इसमें कुछ टीम में नए लोग आए हैं, क्योंकि टीम लगातार एक्सपेंड हो रही है, तो कुछ नए लोग आए हैं, उन्होंने इसको रॉन्गली प्लेस किया है कुछ डाटा को। तो इस शीट को हटा दिया गया, बदल दिया गया है, बट इसका एक जस्टिफिकेशन हम लोग आज ही की डेट में अपलोड करेंगे ऑन एनएससी वेबसाइट ऑल्सो। ठीक है सर, कोई बात नहीं, वो वही मैं समझना चाहता था, मतलब वो नंबर वो गलत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट ये नोटिस में आ गई थी। इस शीट को बदल दिया गया है, इवन रिमूव कर दिया गया है हमारी करंट प्रेजेंटेशन से। ओके ठीक है सर, तो मैंने वो नहीं देखा, सो मैं आपके इस सवाल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं और जो आगे भी सुनेंगे उनको भी कह देना चाहता हूं कि स्लाइड नंबर जो आपने बताई है ये ग्रोथ प्लान की, ये स्लाइड गलत थी और एक टीम मेंबर की गलती से ये इसमें लग गई है और ऑडिट टीम ने भी इसको नहीं देखा है। इसके लिए मैं सभी से माफी चाहता हूं और ऐसा दोबारा नहीं होगा, इसको इंश्योर करूंगा, प्लीज। थैंक यू सर। सर मेरा दूसरा सवाल है सर, हमारे जो अभी इस साल के वो कितने कैपेक्स करने का प्लान है और अगले 2-3 साल के लिए, ओके, और अभी अब तक हमने 2 क्वार्टर में कितने कैपेक्स किए हैं? कैपेक्स कितना किया है? हमने लगभग 40 से 50 करोड़ पे हम पहुंच गए हैं। इन टोटल 50 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी आगे चल रहा है और काम। ये साल तक हम लोग कितना मतलब प्लान कर रहे हैं, कितना कैपेक्स होगा हमारा ये साल में? इस साल में हमारा कैपेक्स कितना हो जाएगा? मुझे लगता है जो कैपेक्स है वो हम लगभग 10 करोड़ और ऐड होगा इसमें, 10 से 15 करोड़ भी और ऐड होगा। जो आपको सर ये सारा ईवी में जाएगा? नहीं सर, कैपेक्स का ईवी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो कैपेक्स है, आप एक बात को समझ लीजिए, चाहे वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर बनाएं और चाहे हम सोलर इन्वर्टर बनाएं, बोथ आर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले आप कॉमन बात समझ लीजिए। तो जो इसकी एसएमटी लाइन्स हैं, जो इसकी असेंबली लाइन्स हैं, वो हमेशा कॉमन होती है, बहुत छोटा फर्क होता है। तो ऐसा नहीं है कि डेडिकेटेड, यानी कि इट इज नॉट अ मोल्ड कि उसमें सिर्फ वही प्रोडक्ट निकलेगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो इसीलिए कैपेक्स को आप ये कह के नहीं ला सकते, और अगर वो होगा भी तो उसका मतलब अगर कोई जो डेडिकेटेड पार्ट है वो इन टोटल का 10 से 15% होता है। यही सबसे बड़ी ब्यूटी है हमारे काम करने के तरीके में, जिससे हम किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि अगर इस तरीके से चला तो दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आज उस आइटम की प्रोडक्शन नहीं हो रही, दूसरा काम नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा। अंडरस्टैंड? यस सर। सर मैं मतलब बेसिकली ये एक सवाल पूछ रहा था कि क्या हमारा सोलर बिजनेस जो है, क्योंकि हमें ईवी की बड़ी सारी न्यूज मिलती है, सोलर की अभी मिली, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जनरली हमें सोलर रिलेटेड कम न्यूज मिली, तो उसमें प्रोडक्शन की मतलब कैसे हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में मैंने अभी आपको अपनी स्पीच में भी मैंने अभी रिपीट किया है कि जो हमने पिछले 2 सालों में ईवी में किया है, अब एक वर्टिकल स्टार्ट हो गया है जो सोलर में भी वैसे ही करना चाहता है। तो हम बहुत तेजी से अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी और प्रोडक्ट रेंज भी हमने एक्सपेंड की है, राइट? तो ये सब आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। सर और एक थोड़ा स्ट्रेटेजी रिलेटेड सवाल था सर, डू यू सी अ बेनिफिट कि सोलर और ईवी बिजनेस को अलग कर दिया जाए? डज मैनेजमेंट हैव एनी सच प्लान इन द फ्यूचर? अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। Okay, और मैं समझता हूँ कि ऐसा प्लान हो भी नहीं सकता। ऐसा इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि ये आने वाले टाइम में एक दूसरे में जल कर जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी एक बात का जवाब दिया था और वो ये था कि यहाँ पर एक इशू है और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्कॉम से। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी कि आपको ईवी चार्जर्स सोलर बेस्ड मिले या ईवी चार्जर्स आपको एनर्जी स्टोरेज बेस्ड मिले या ईवी चार्जर्स आपको विंड एनर्जी बेस्ड मिले। तो मैं इसको अलग कैसे करूंगा? हम तो इसको आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करने की बातें कर रहे हैं। अच्छा, ओके, मतलब हमारी स्ट्रेटेजी अलग है जो प्योर सोलर प्लेयर है, जहाँ पे मतलब सर अगर हम इनोवेटिव नहीं होंगे तो हम इतनी तेजी से ग्रो भी नहीं कर पाएंगे और ऐसे रिजल्ट भी नहीं ला पाएंगे। हमें इनोवेटिव रहना पड़ेगा। ओके सर,
यस सर, थैंक यू सर। सर और मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि हमारा फिलहाल एएमसी बिजनेस का शेयर कितना होगा सर ओवरऑल में? फिलहाल एएमसी का Annual बिजनेस नहीं है, maintenance में। लेकिन जितने भी हम प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं आने वाले 3 साल के बाद आपको एएमसी का एक बहुत बड़ा चंक देखने को मिलेगा हमारी बैलेंस शीट में, जो बहुत बड़ा होगा। और वो हो सकता है कि कंपनी को ब्रेक इवन की तरफ ले जाए, इतना बड़ा चंक भी बन सकता है जिस तरीके से जो वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट, ओके ओके ओके, हाँ हाँ। और सर जब हम एक चार्जर, स्पेशली डीसी चार्जर जब हम सेल करते हैं किसी कंपनी को या हमने बीपीसी लगाया, आपकी आवाज कट रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रही है, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। हेलो, प्रोडक्ट लाइफ कितनी होती है, कितने साल तक? आपकी पूरी आवाज क्रैक हो गई, अब मुझे दोबारा सुनाए, बोले। सर मैं ये पूछ रहा था कि प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं, सोलर ईवी चार्जर या सार चार्जर, उनकी जनरली प्रोडक्ट लाइफ कितनी होती है, कितने साल तक वो मतलब सर्विस दे सकते हैं? हम सब 3 साल की वारंटी देते हैं, और नॉर्मली जितने भी हम अग्रीमेंट साइन अप कर रहे हैं वो सब 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। यार आवाज बंद कर दिया। तो सर वो 10 साल में फिर अगर एक बार हमने चार्जर बेच दिया तो फिर उसमें हमारे पास और कोई रेवेन्यू फिर सोर्स रह जाता है सिवाय ईएमसी के? कुछ और जैसे छोटे मोटे पार्ट हो, जनरली वो आप कैसे देखते हैं? आपको तो मतलब ये सर मेरा ये मानना है कि अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट दूं जिसमें मैं 3 साल के बाद ये उम्मीद करूं कि मैं एएमसी या स्पेयर से पैसा बनाऊंगा, तो इसका मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बना रहा। मैं ये मान रहा हूं कि जो प्रोडक्ट बेच दिया वो जिंदगी में मेरे पास वापस नहीं आएगा। अगर मैं इस सोच के साथ प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा तो ये कंपनी बहुत दूर तक नहीं जाएगी। ऐसी सोच मेरे पास नहीं है सर, और मुझे वो पैसा कमाना भी नहीं है। मेरी चाहता है जो प्रोडक्ट बेच दूं लोग कहें कि अब इसमें दिक्कत नहीं आती है। एप्पल फोन कितनी बार रिपेयर होते हैं दुनिया में? कहाँ होते हैं? टूटता है तो होते हैं ना, नॉर्मली तो नहीं होते। तो सर इसी सोच के साथ प्रोडक्ट बना रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट कंप्लेंट सर्विसेज की उनको जरूरत ना पड़े, ऐसी सोच के साथ बना रहे हैं। कितने कामयाब हो पाएंगे भगवान के हाथ में है या हमारी मेहनत के हाथ में है, बट हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। हमारी सोच में ईमानदारी है। नहीं सर, मैं इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें उसके बाद भी रिकरिंग रेवेन्यू का स्कोप है सिवाय एएमसी के? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। 10 साल की बात आपसे मैंने बता दी कि 3 साल के बाद अगले 7 साल तक भी हमने अगर डील की है तो आज कोई भी टेक्नोलॉजी 10 साल तक जिंदा रहेगी, इसकी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता सर। और हम 10 साल की प्रोडक्ट लाइफ की बातें कर रहे हैं। इससे आगे तो मैं नहीं सोच रहा हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। मेरा ऐसा मानना है तब तक दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका होगा। ओके सर। और सर मेरा आखिरी सवाल, सर हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं जो आपने। आपकी आवाज फिर चली गई सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है सर। मैं ये पूछ रहा था कि आपने भी देखा होगा शायद कमर्शियल व्हीकल स्पेशली बसेस के लिए बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट और जो है मतलब म्यूनिसिपैलिटी से आपने देखे होंगे बड़े सारे आते हैं, बट उसके साथ कोई चार्जिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जो टिपिकली हमें नहीं देखने मिलता। बसेस के ऑर्डर तो बड़े होते हैं 10,000 15,000। सर फिर आप अवेयर नहीं है, फिर आप ध्यान से देखें। अभी नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हमने किया है, वहाँ 29 चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं। बेस्कॉम के साथ किया है, वहाँ चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं। एनर्ट के साथ किया है, वहाँ चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं। और बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन की खबर आपको जल्दी आएगी। तो काम तो हो रहे हैं। ओके ओके, हाँ, क्योंकि जनरली आप वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट के न्यूज दिखते हैं ओके, जहाँ पे जैसे बॉम्बे में 10,000 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ओलेक्ट्रा को, बट उसके साथ कोई ऐसा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का वो इसलिए है कि जिनको बसेस चलानी है वो उनको ही चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ते हैं, और उन चार्जिंग स्टेशन के लिए हम ओईएम्स को चार्जर्स देते हैं। तो वो अलग से चार्जिंग स्टेशन का कोई ऑर्डर नहीं आता है, वो जिम्मेवारी है उस ऑटोमोबाइल कंपनी की। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। आई गेट बैक इनटू द क्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, और आपको दिवाली की बहुत सारी बधाई। आपको भी जी। Thank you, sir. Participants are kindly requested to ask 2 questions in the initial round and may join the Q&A for more questions. The next question comes from Mr. Amit Kumar, an individual investor. Please go ahead. Thank you for the opportunity, sir, and congratulations for great set of numbers. सर मेरा क्वेश्चन है कि H1 में हमारी रेवेन्यू 312 करोड़ गई, तो मोटा माटा हमारा FY 25 में 650 से 700 करोड़ के आसपास रहेगी। और मैं यहाँ पे स्लाइड नंबर 39 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देख रहा हूँ, एक ही चार्जर हमारा जो क्या है कि 144 करोड़ होगा FY 27-28 में। सर इसको मैं सर पिछले सवाल पे ना मैं इसको खारिज कर चुका हूँ ऑलरेडी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप अभी रेफर ना करें।
ये स्लाइड गलत है। हाँ, ये स्लाइड को रेफर ना करें प्लीज। हाँ नहीं मैं वो नहीं कह, मैं सही कह रहा हूँ कि तो हमारी FY 27-28 की गाइडेंस कितनी हो सकती है अप्रोक्सीमेटली? सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उस स्लाइड को ही आप रेफर ना करें। मैं 27-28 को रेफर नहीं कर रहा सर। तो सर मैं 27-28 की बात अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए भी मेरे पास बिजनेस प्लान ये भी बन के मेरे पास नहीं आए हैं। तो मैं कोई भी वो बात नहीं करता हूँ जिसमें कल को मैं कह ना पाऊँ। यही एक बड़ी मुश्किल से अपनी एक मार्केट में रेपुटेशन क्रिएट कर पाया हूँ कि अगर मैं कुछ बात कह रहा हूँ तो वो जस्टिफाइड और जेन्युइन होगी। इसको बहुत मुश्किल से क्रिएट किया है मैंने अपनी इमेज को, और मैं उसको बरकरार रखना चाहता हूँ। तो मैंने आज से पहले भी जितनी भी कॉल्स पे आया हूँ आप लोगों के साथ, जो कहा है उस पे काम किया है। तो अभी 27-28 की कोई बात बहुत ज्यादा क्लियर मेरे सामने नहीं है। काम बहुत हो रहा है, पीछे 2030 पे भी काम कर रहे हैं, 2035 पे भी कर रहे हैं, 2073 पे भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं इन्वेस्टर्स के सामने आज प्रेजेंट कर पाऊंगा। ओके, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछले 4 साल में जो कुछ किया है वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से और ईमानदारी से लगे हुए हैं, तो रिजल्ट अच्छे ही होंगे। ओके सर, तो मैं थोड़ा कंपनी में न्यू थोड़ा बताएंगे पावर मॉड्यूल्स का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? किसके पावर मॉड्यूल सर डीसी फास्ट चार्जर्स में लगते हैं। जितने भी चार्जिंग स्टेशन बड़े बड़े बन रहे हैं उनमें जो चार्जर्स लगे हुए हैं उन सबके अंदर डीसी पावर मॉड्यूल लगते हैं सर। ये एक तरह से हार्ट है जो पावर पंप करता है कार की बैटरी में। ओके सर, और सर बाकी हमारा ओईएम से टाई अप हो चुका, जैसे कुछ बात चल रहा है टाटा वगैरह से, किस तरह से मतलब हम आगे प्लान कर रहे हैं? मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात सर। हम क्या डायरेक्टली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक मारुति, टाटा हो गया, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स को टाई अप कर रहे हैं? किस तरह से हम मतलब किस चीज के लिए? सर बैटरीज के लिए, एसी चार्जर, डीसी चार्जर के लिए। नहीं, बैटरी के लिए डीसी चार्जर सर, वो लोग डीसी चार्जर क्यों लेंगे? वो तो गाड़ियां बना रहे हैं, उनका डीसी चार्जर से क्या लेना? एसी चार्जर सर जो गाड़ी में लगता है वो वाला चार्जर। अच्छा, एसी चार्जर पे सर कई लोगों के साथ काम हो रहा है, लेकिन हम उसको लेके बहुत ज्यादा की फोकस्ड नहीं है। बट उसके भी वॉल्यूम ठीक ठाक है हमारे, बट हम उसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। ओके, तो हम उस पर ओईएम से टाई अप पे नहीं सोचे, मतलब खुद ही हम कर रहे हैं? नहीं, ओईएम से कर रहे हैं सर, ओईएम के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे कोई नंबर्स अलग से नहीं है। क्योंकि उनका अगर हम बात करें, एक ये चार्जर डीसी फास्ट चार्जर का एक चार्जर 5 लाख रुपए का, वो एक चार्जर 10,000 रुपए का है, 15,000 रुपए का है। तो मैं अगर उसमें बड़ी से बड़ी बात भी कर लूंगा तो कितने बड़े वॉल्यूम की आपसे बात कर लूंगा। तो मुझे इस जगह पर आप लोगों के साथ खड़े होकर वो बात करनी है, यानी कि हमें 80-20 का रूल लगाना है, जहां पर हम वो की चीजों की बात करें, की पॉइंट्स की बात करें जो कंपनी को एक डायरेक्शन देगी। वो बहुत छोटा वॉल्यूम है, तो इसलिए उस पर कोई बात करने वाली बात नजर नहीं आती है मुझे। अगर वहां पर मैं 1 लाख चार्जर बेच भी दूंगा तो भी क्या वैल्यू बनेगा? राइट सर, और हमारे चार्जर है एसी चार्जर, डीसी चार्जर, इसका कुछ हमारी डिपेंडेंसी है चाइना के? कुछ रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? क्या 100% इंडिया से हम परचेज कर रहे हैं? नहीं सर, रॉ मटेरियल सब बाहर से आता है। अभी इंडिया में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां नहीं लगी हैं, तो आप सेमीकंडक्टर के लिए आज भी बहुत कुछ चाइना पे डिपेंडेंट हैं। उसके ऊपर मेरे पास अभी कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चर नहीं है। तो अगर हमारा 100 रुपए का रॉ मटेरियल है तो उसमें से कितने % हमारा डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल की चाइना के ऊपर? सर 2 अलग अलग बातें हैं सर, 2 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। जब हम बात करते हैं कि हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, रॉ मटेरियल का मतलब है जो कंपोनेंट मैं यूज करता हूं, सर्वोटेक यूज करता है अपने चार्जर को बनाने में, तो उसमें 72% जो रॉ मटेरियल है वो इंडियनाइज है, इंडिया में मेक इन इंडिया है। हाँ जी, करेक्ट। और हम इसको 90% तक ले जाएंगे। अब उसकी डेफिनेशन गवर्नमेंट ने फिक्स की है। अब इसमें जो कोर कंपोनेंट्स हैं, वो कोर कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उनको इन सब चीजों से बाहर रखा गया है। क्योंकि अगर वो कोई इंडिया में बन ही नहीं रहा तो उसकी बात ही कैसे कर सकता हूं मैं? ठीक है, तो वो तो इम्पोर्ट ही होगा, वो कहीं ना कहीं इम्पोर्ट होगा, और मेजरली चाइना से हो रहा है, कोई हो रहा है। तो इंडिया में कब तक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज मतलब लग सकती है? इसका जवाब इसके लिए मैं ठीक आदमी नहीं हूँ इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ना मैं उस फैक्ट्री को देखता हूँ। जब आएगी तो वो हमारा सप्लायर बन जाएगा और हम उसे खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग, ऑल द बेस्ट सर। जी, थैंक यू। Thank you, sir. Dear participants, if you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad. The next question comes from Mr. Vaibhav Shukwani, an individual investor. Please go ahead. Hello, sir. Can you hear me? Yeah, I am hearing you.
Yeah, sir. Thank you for the opportunity, sir. I joined very late. So, sir, I wanted to know the current capacity of solar, AC and DC chargers, sir. जी So, what is the current capacity that we are utilizing and we are operating? सर, हम लोग अभी जो हमारी कैपेसिटी है डीसी फास्ट चार्जर की वो लगभग 1000 यूनिट पर मंथ की है और हम अभी Okay. जो करंट कैपेसिटी की यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो 60% के आसपास कर पा रहे हैं एवरेज, यानी कि कभी वो 70-75 होती है और तो कभी वो 50 के आसपास होती है। तो एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, तो एवरेज हम 60% पे ऑपरेट कर रहे हैं अभी। और उसकी रीजन भी मैं पिछले सवाल के जवाब में दे चुका हूं कि क्यों। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अच्छा, sir. एक चैलेंज है मार्केट में मेरे Sir, मेरे and यूजर के। what is our vision? What is our vision, I mean, for next 5 years? विजन इज वेरी क्लियर। इंडिया में टॉप 3 कंपनीज में एक होंगे और वहां तक पहुंचना है। और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना ही मेहनत करनी पड़े, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट देना पड़े, कितना ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट देना पड़े, कितना ही बेटर यूजर एक्सपीरियंस देना पड़े, इसके लिए हम कमिटेड है, उस पर काम करते हैं। Sir, updated on our new manufacturing facilities, sir. न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विल फुल्ली ऑपरेशनल बिफोर जनवरी 2025। दैट इज Okay. श्योर। So that's it, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. The next question comes from Rahul Shah from Star Investments. Please go ahead. Hello. यस Hello. जी। Good morning, sir. Happy Diwali and congratulations for a good set of numbers. Thank So, you. sir, मेरे को like I wanted to understand कि like what is our like contribution from export, like what contribution like revenue and what contribution do we get from exports? देखिए सर, लास्ट ईयर का भी जो एक्सपोर्ट था वो लगभग 40 करोड़ के आसपास था। मैं ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूँ, लगभग 40 करोड़ था। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो वो सभी भी सैम्पलिंग बेसिस पे हो रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट अ रेगुलर सप्लाईज। तो अभी डिफरेंट कंट्रीज में ट्रायल्स हो रहे हैं और करंट ईयर में भी आई थिंक कोई हमने 10 करोड़ का एक्सपोर्ट कर लिया है H1 में। 10 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट हो चुका है आई थिंक। तो ये भी सैम्पलिंग बेस पे है। हमारा टारगेट है 40 से 50 कंट्रीज को कैटर करने का। तो अगर हम इतने सारे सैंपल्स जो कि कंपनी की रेवेन्यू का 12-15% बनता है लास्ट ईयर की रेवेन्यू का, इतने अगर हम सैंपलिंग कर पा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना बड़ा मास एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। Right. So when do we expect this to like get converted into orders, full final orders from सर, the इंटरनेशनल samples बिजनेस that you- के अंदर ना ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे फैक्टर इस पे डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर तो अभी मैं ऐसे कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। बट आपने अच्छा किया ये बात कह के। वन सेकेंड, नहीं, वन सेकेंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो पॉइंट मेरे सामने रखा है वो उसने मुझे एक सवाल दे दिया है और अच्छा हुआ है एक आ गया। और वो ये है कि हम इसको फोकस करके देखने की कोशिश करते हैं और समझेंगे कि हम कैसे इस पाइपलाइन को मजबूत कर पाएंगे और कैसे हम बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ये जरूर एक सवाल आ गया तो मैंने इसको नोट कर लिया है। थैंक यू। Yes. Thank you, sir. Sir, and sir, I want to understand like currently what is our order book like and for the second half like of the year and for the next 26 FY25. ऑर्डर बुक की जहां तक मैं बात करूं तो मेरे को लगता है करीब 600 करोड़ प्लस के ऑर्डर अभी हमारे पास इन हैंड हैं। एग्जीक्यूशन के कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो वो चैलेंज मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है, मेरे यूजर के एंड पे हैं, जो मैंने पिछले भी 2 सवालों में 2 बार मैं ये जवाब दे चुका हूं, एक बार और दे रहा हूं कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा जितनी तेजी से गवर्नमेंट ने ई ड्राइव मिशन को लिया है और जितनी तेजी से ऑयल मार्केटिंग कंपनी और दूसरे लोगों ने काम करना शुरू किया है और जितनी तेजी से हमने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। तो वो एक अभी बॉटलनेक बन रहा है। वो बॉटलनेक अगर सॉल्व हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बड़े आराम से 2000 यूनिट्स भी पर मंथ की प्रोडक्शन भी कर पाएंगे और डिस्पैच भी कर पाएंगे। वो कैपेसिटी हमारी बिल्ट हो चुकी है और बस देख रहे हैं कैसे हो सकता है। एक बार इकोसिस्टम में सब कुछ सीमलेस जैसे होता जाएगा, चीजें बढ़ती जाएंगी। Right. I agree to that. There are some bottlenecks in the like infrastructure development. So any like do you see any support from the government in removing this bottlenecks or so that there is more infrastructure improvement in the country for EV chargers and EV cars?
काम चल रहा है सर, सब तरफ काम चल रहा है, स्टेट एजेंसी भी काम कर रही है, डिस्कॉम्स भी सब काम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज का एक टाइम है और वो टाइम लगता है। वो रूम कैन नॉट बिल्ड इन अ डे, तो वो थोड़ा सा है। तो जिस जहां बॉटलनेक का सबसे खास बात क्या होती है कि वो शिफ्ट होती है। जब आप कुछ भी ठीक करना शुरू करते हैं तो पहले एक जगह प्रॉब्लम नजर आती है, जब उसको सॉल्व करते हैं तो वो दूसरी जगह बन जाती है, फिर दूसरी जगह सॉल्व करते हैं तीसरी जगह बन जाती है। तो ऐसे ही अभी वहां रुका हुआ है, जब वो सॉल्व होगा तो हो सकता है कोई नई बॉटलनेक आएगी। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, तो सर ये तो चलता ही रहेगा। इस सब के बीच में ही बेटर करना है और वही करते आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ऐसा तो नहीं था कि पिछले 3 साल सब सीमलेस थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम आई, अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर में थर्ड क्वार्टर बिल्कुल डाउन था, हमने लास्ट ईयर से भी कम टर्नओवर की थी। तो ये तो हमेशा आता रहेगा, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट रुक गए थे, कभी नोटिफिकेशन चेंज हुई, तो आज ये वाली प्रॉब्लम है, अगली बार कुछ और होगी। इस सब के अंदर अच्छी बात यह है कि इन सबसे लड़ते हुए भी हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये भगवान की बहुत कृपा है हम पे और हमारी टीम की बहुत मेहनत है कि हम कुछ कर पा रहे हैं और आगे भी करने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। Right. So you just also mentioned that we are around 600 crores of order book, sir, right? So I want to understand the split between the EV and the solar, so like segments of the business. सर अभी ये ना 70-30 की रेशो के आसपास चल रहा है, अगर हम मोटा मोटी बात करें तो 70 EV and 30 solar, right, sir? जी 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 जी। So sir, our core focus would be on EV only in future to increase the EV order book? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, हमारा फोकस दोनों पे है। और अगर मैं देखूं तो इसका जो रेशो रहेगा वो 60-40 रहेगा आने वाले टाइम में, ऐसी कोशिश जी जी। Yes. Sir, on the last question, sir. So you had incorporated a subsidiary for sports and management, right? Cricket, I guess, sports team. एक बार दोबारा बोलेंगे, सवाल आपका सवाल समझ नहीं पाया मैं। Sir, I understand that you have given a notification about a new subsidiary for sports team, I guess in Kolkata, right, sir? जी 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 जी। Sir, is there any motivation, like any strategy to incorporate this subsidiary or to get into this side? सर एक वाई होता है, हर चीज को करने के पीछे एक रीजन होता है और उसका जो रीजन है वो बहुत बड़ा रीजन है और वो रीजन है मेरा बेटा। मेरे बेटे को क्रिकेट खेलने का शौक है, वो क्रिकेट में कुछ करना चाहता है। जब उसने करने की कोशिश की और एज अ फादर मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, तो मुझे नजर आया कि बहुत सारी पॉलिटिक्स है जो बच्चों को आगे नहीं जाने देना चाहती। तो मैं रिसोर्सफुल हूं इन कंपेरेटिव टू आम इंसान के, तो मैं तो चलो कुछ कर लूंगा, ऐसा सोचा मैंने, लेकिन बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या मैं कुछ चांस देने के लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता हूं? तो मैंने वो क्रिएट करने की कोशिश की और लोगों को चांस दिया। और अच्छी बात यह है कि मैंने इस सब चांस को देते हुए अपनी उस टीम में अपने बेटे को चांस नहीं दिया, तो कोई ये नहीं कह सकता कि इट इज अ पार्शियलिटी। तो बेटे के लिए मेहनत एज अ फादर अलग हो रही है, बट मैंने एक रास्ता खोल दिया जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को चांस दे सकता हूं क्या। तो वो एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश की है और कोशिश किया कि इस दिशा में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। दैट इज अ थॉट। अब इस थॉट को आप लोग पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, लेकिन मैं वही करता हूं जो मुझे लगता है कि ठीक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। Right. Absolutely, sir. Good initiative, sir. Thank you and happy new year in advance, sir. Thank you for your time. Thank you. Sir. Thank you, sir. Dear participants, if you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad. The next question comes from Rishi Kokne, an individual investor. Please go ahead. Hi, sir. Am I audible? जी Yes, sir. You currently hold around 35 to 40% market share in EV charging solutions. So what specific strategies do you have in place to further increase this market share over the next few years? सर दो चीजें हैं। एक, आप मार्केट शेयर को इंक्रीज करने की जब बात कर रहे हैं तो वो तब होता है जब मार्केट आपकी जो है ना वो सैचुरेट हो। फॉर एग्जांपल मार्केट में रिक्वायरमेंट 100 की है और आप 35 बेच पा रहे हैं और आप कहेंगे कि मेरे को अगर 35 से ज्यादा बेचना है तो यू हैव टू चेंज एंड ट्राई टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर, राइट। बट यहां पर आप इसको ऐसे समझें कि बारिश हो रही है बहुत तेज बाहर और मैंने सर पे लोटा रख के बाहर निकला तो मेरा लोटा आराम से भर ही जाएगा, मुझे उस पर तो दिमाग लगाना नहीं है। अब टारगेट ये है कि क्या मैं 100 लोटे एक साथ भर सकता हूं, तो क्या मैं इसको स्केल कर सकता हूं, दैट इज अ थॉट। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट बहुत तेजी से एक्सपेंड होने वाली है। अगर ये शेयर 35 या 40 से गिर के 20 भी रह जाए और मार्केट इतनी बड़ी होने वाली है कि आज की मार्केट साइज से 100 टाइम्स बड़ी होने वाली है, तो भी आप सोचें वो 20-30 कितना बड़ा हो जाएगा। तो माई थॉट प्रोसेस इज कि हाउ आई कैन कैटर सो मच बिग बिजनेस इन अ फ्यूचर, आई एम थिंकिंग ऑन दैट, नॉट ऑन अ मार्केट शेयर।
तो अगर मैंने वो किया तो मार्केट शेयर तो अपने आप हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है एफर्ट स्कोर, नॉट अ रिजल्ट स्कोर। तो रिजल्ट अपने आप बढ़िया होंगे अगर आपके एफर्ट्स बढ़िया हो जाएंगे तो। दैट इज माई थॉट। Right, sir. So, sir, my second question is, what are the key areas of focus for your R&D center, and how do you prioritize projects? बहुत सिंपल सी बात है सर, मैं दो ही चीजें देखता हूँ जो मेरी सोच है, जो मैं बार बार पब्लिक में भी कहता हूँ। पहला सवाल यह है कि कस्टमर क्या चाहता है, यूजर क्या चाहता है। Right. और इसको मैंने सीखा है एप्पल जैसी कंपनी से, एंड्रॉइड जैसी कंपनी से। Okay. आप ये देखें कि जो आईफोन 16 आया है उसको अभी दुनिया में लॉन्च हुए 1 महीना हुआ है मुश्किल से, और उसकी डिलीवरी जो स्टार्ट हुई हैं वो डिलीवरीज को स्टार्ट हुआ भी 1 महीना भी नहीं हुआ। होप यू एग्री विद मी, राइट? Right, sir. लेकिन जिस दिन वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, अगले दिन मॉर्निंग में जो मैंने पहली खबर देखी वो देखी आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है अगले साल। Okay. तो मेरा सवाल यह है कि जब आईफोन 17 इससे बेटर होगा तो उसी को अभी लॉन्च क्यों नहीं कर दिया, या वो सब 16 में क्यों नहीं डाल दिया? Right. तो इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि इन नेक्स्ट ईयर जो लोगों की नेक्स्ट प्रेफरेंसेज होंगी या और जो लोगों की चाहत होगी उस पर काम करना शुरू कर दिया है, और वो 17 में डाला जाएगा। एग्जाम्पल, दैट इज नंबर 1। दूसरी बात, जब फोन लॉन्च किया गया है उस दिन से लेकर अब तक उसमें 3 अपडेट आ चुके हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना? और साथ में ये कहा जा रहा है कि आपको दिसंबर तक और अपडेट मिलेंगे। तो वो सब कुछ अपडेट पहले ही क्यों नहीं डाल दिए गए? तो इसका मतलब यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से जो जो बदलाव दुनिया में आ रहे हैं या लोगों में आ रहे हैं उसके हिसाब से उस पर काम किया जा रहा है। तो ये मुझे मोटिवेट करता है अपने प्रोडक्ट के लिए भी कि मैं यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर कैसे कर सकता हूं, और उसी को लेके हम R&D में काम करते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल के अलावा हम टेक्नोलॉजी को और कन्वर्जन को कितना सस्ता कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट को सस्ते सस्ता बनाया जा सके। ये 2 वजहें हैं और 2 तरीके हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए और उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए। Okay, sir. So, sir, are there any upcoming product launches you can share with us? सर अभी 2 दिन पहले तो किए हैं, थोड़ा सा सांस ले लें। No. Okay, sir. That's my question, sir. Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. The next question comes from Jitesh Parmar, an individual investor. Please go ahead. थैंक यू सर, वापस मेरे सवाल लेने के लिए धन्यवाद। सर मेरा सवाल था हमारे नेट मार्जिन पे। जो हमारे नेट मार्जिन है वो सिंगल डिजिट है, ओके, और हमारा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट अराउंड 80% है। तो सर क्या हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है करुल के, अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस में अगर फ्लक्चुएशन आए हेवी तो हम लोग वो पास ऑन कर सके और हमारे नेट मार्जिन जो है प्रोटेक्ट कर सके, या फिर वो डिफिकल्ट रहेगा अगर सडन चेंज आ जाए रॉ मटेरियल प्राइसेस पे? सर रॉ मटेरियल की प्राइसिंग को लेके इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप ये देखें कि आज से 10 साल पहले जो फोन आया करता था, मैं आपको मोबाइल फोन या फोन की बातें बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि आज ना वो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया हुआ है, और हिंदुस्तान के अंदर मैं कोई ऐसा आदमी नहीं समझता जिसके हाथ में मोबाइल फोन नहीं है। दैट्स वाई मैं ये एग्जांपल लेता हूं ताकि मैं आसानी से आपको की बात समझा पाऊं। मैं किसी मोबाइल फोन की कंपनी का ना एजेंट हूं ना डिस्ट्रीब्यूटर हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको आसानी से समझाने के लिए बात करता हूं। तो आज से 10 साल पहले जो फोन आया करते थे उनका बहुत बड़ा बॉक्स आता था, पैकेजिंग बॉक्स। उसमें एक कैटलॉग होती थी, एक मैनुअल होता था, एक साथ में डीवीडी होती थी, राइट, बहुत सारी चीजें होती थी, केबल होती थी, चार्जर होता था, एक हेडफोन होता था, बड़ा सा डब्बा आता था, और वो फोन आता था 20,000 रुपए का, बहुत महंगा था। आज 1.5 लाख रुपए का फोन आता है और आप अपनी पॉकेट में पैक्ड फोन रख के ला सकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं ना? बराबर। हाँ सर। तो ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस हम भी काम कर रहे हैं कि हम वक्त के साथ अपने उसी आउटकम को अचीव करने के लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना कम कर सकते हैं, हम इस पे काम करते हैं। इसलिए रॉ मटेरियल उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी इंक्रीज कर जाएगी, इन्फ्लेट कर जाएगी, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती, क्योंकि हम लगातार उस रॉ मटेरियल को की कॉस्ट को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो सोचने के लिए हम कहीं और खड़े हैं, बजाय इसके कि जो आज हम बना रहे हैं अगले 1 साल भी वही बनाएंगे। अगर ये सोचेंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंपैक्ट करेगी, 100% करेगी, क्योंकि वो बढ़ती जा रही है। बराबर। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू। यस सर, यस सर। तो हम कहीं किसी और तरीके से काम कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज आउट ऑफ द बॉक्स। करेक्ट।
हम और सर हमारे ऑर्थोडॉक्स या कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस से काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर लेकिन हमारे फिर जो हम मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दैट वी वुड लाइक टू मिनिमम मेंटेन, दैट वुड रिमेन, मतलब वो हमेशा सिंगल डिजिट ही रहेंगे या फिर वी हैव अ प्लान टू काइंड ऑफ एक्सपांड ऑन दोस मार्जिन्स? आई मीन हाउ डू यू सी दिस मार्केट? सर एक बहुत सिंपल सी बात है, एज अ इन्वेस्टर आप मुझसे बात कर रहे हैं और जितने कॉल सुन रहे हैं वो भी लगभग सारे इन्वेस्टर हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर। सर बड़े आराम से घड़ी देख के 60 सेकंड से कम में पिछले 4 साल की बैलेंस शीट P&L देख के आपको समझ में आ सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है, इम्प्रूवमेंट है या डिक्रीजिंग है, ये तो आप जानते हो। तो कुछ तो कर ही रहे हैं ना। Yes, sir. और वो जो कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट तो दिख ही रही है ना आपको। तो फिर भी अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं समझ नहीं पाया मैं इसका जवाब कैसे दूं। मैं इस तरीके से सोच रहा था क्योंकि ईवी मार्केट अभी काफी नया है और देखिए उसमें अब जो है बड़े सारे प्लेयर एंटर होना शुरू हो गए हैं, तो कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा। सर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर मैं आज प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा लूं, वो बहुत आसान है, तो हम कहीं रहेंगे नहीं। मेरा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है, मैं इसको बाय प्रोडक्ट मानता हूं। मेरा मानना यह है कि मैं कस्टमर को वो दे पाऊं जो उसको चाहिए और उस प्राइस पे दे पाऊं जो वो सोच भी ना सकता हो। तो सर कोई कैसे बीट करेगा? अगर आपके प्रोडक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है और आपके कस्टमर का ऑब्जेक्शन नहीं है तो सर आपको कोई बीट नहीं कर सकता। करेक्ट। तो थोड़ा सा मैं कहीं और देख रहा हूं या कहीं और देखना चाह रहा हूं, फोकस कुछ और है। फोकस ये है कि कैसे कम से कम प्रॉफिट में, मैं तो जहां से शुरू हुआ था और जितने कम प्रॉफिट पे हम लोग शुरू हुए थे और जितनी चाहत थी उससे बहुत ज्यादा हो चुका है। अब तो ये चाहिए कि जो आ जाए उससे कंपनी का हर बार। सर आप ना वाई सर्वोटेक एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं सभी अपने शेयर होल्डर्स के लिए। हमारी कंपनी के हर ईमेल में एक सिग्नेचर है दैट इज कॉल्ड वाई सर्वोटेक। सर्वोटेक इसलिए है कि इस इकोसिस्टम में जितने भी लोग हैं वो सब ग्रो करेंगे और जो पैसा कमाएंगे उस पैसे का पहला हिस्सा हम इस कंपनी को बड़ा करने में खर्चेंगे। फिर जो बचेगा उस पैसे से हम अपने एम्प्लॉइज और अपने सप्लायर्स और सब लोगों के जुड़े हुए लोगों को ग्रो करवाएंगे। फिर जो बचेगा उससे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। फिर जो बचेगा उससे हम अपने इन्वेस्टर का भला करेंगे। और अगर इन्वेस्टर का इस सब कुछ करने के बावजूद भी 4 साल से इन्वेस्टर का बहुत बड़ा भला हो रहा है तो मतलब से सबका हो रहा है। इट मीन्स हम कुछ ठीक कर रहे हैं। ओके सर। और सर दूसरा सवाल जो एक्सपोर्ट मार्केट से लेके है, सर एक्सपोर्ट मार्केट में हमारी यूएसपी क्या है? मतलब हम कैसे कम्पीट करते हैं? इज इट प्राइस दैट वी कम्पीट ऑन विद द प्रोडक्ट और इज इट लाइक आई मीन क्या है वो सर्वोटेक अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है? सर जैसे आप प्राइस की बात करते हैं ना तो सोच बदल जाती है। आज मर्सिडीज की गाड़ी, अब आप समझिएगा, मर्सिडीज की गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है और मारुति की रेंज ही 15 लाख पे खत्म हो जाती है। ठीक है, अब मुझे अगर कार चाहिए तो मैं 15 लाख में भी ले सकता हूं। मैं ठीक कह रहा हूं ना? मेरा काम तो 15 लाख में हो सकता है और वो सारे फीचर ही मिल जाते हैं जो मुझे चाहिए। लेकिन अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे मर्सिडीज ही चाहिए और 1 करोड़ वाली गाड़ी ही चाहिए और मैंने अगर वो 1 करोड़ वाली गाड़ी 90 लाख में ले ली तो वो मेरा डिस्काउंट होगा, वो मेरी बेस्ट बाइंग होगी। लेकिन अगर मैंने 1 करोड़ की जगह 15 लाख की गाड़ी ले ली तो वो मेरा कॉम्प्रोमाइज होगा। तो मैं वही चाहता हूं कि कस्टमर जो चाहता है उसको वही दूं इन अ बेटर प्राइस, नॉट कि मैं उसको सस्ता दूं। तो आप जो बात कर रहे थे कि कम प्राइस मेरी यूएसपी है, नहीं, मेरी यूएसपी है कि मैं वो प्रोडक्ट दूं जो वो कहता है कि ये बहुत महंगा होता है या बहुत लेविश है या ये बहुत ज्यादा महंगा है, उसी प्रोडक्ट को बेस्ट प्राइस पे दूं जो वो एक्सपेक्ट नहीं करता। दैट इज माई यूएसपी। ओके ओके। और सर ये हम फिलहाल डीसी चार्जर्स ही एक्सपोर्ट के लिए देख रहे हैं या फिर आर वी ऑल्सो लुकिंग फॉर अदर प्रोडक्ट्स? हम एसी चार्जर भी कर रहे हैं और इसके अलावा हम सोलर भी कर रहे हैं। ओके जी ओके, थैंक यू सर, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Dear participants, if you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad. The next question comes from Rahul Shah from Star Investments. Please go ahead. Hello, sir. Hello. जी सर। Yeah, thank you, sir, again for the opportunity, sir. So I wanted to ask, sir, right now EBITDA margin is roughly
9.5, 9.6%, sir. So, sir, like you said, sir, we are making the products more cheaper and cheaper, and like friendly for the customer, like in a money perspective. So, do we like in the long term we expect the margins to be maintained at 9.5, 9.6 or 10%, or we see expansion if you like make the products? We will be able to make margins if you make more products cheaper then. सर मुझे तो इस बात का जवाब पिछले सवाल पे भी दिया है, दोबारा देना चाहता हूँ। मेरा सवाल तो यह है सर कि पिछले 4 सालों में क्या एबिटा इंप्रूव हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये तो बता दें आप मुझे। It is improving, sir. तो सर काम तो कर ही रहे हैं। Right, sir. So it is improved, but sir, in the future, like if we like. नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारा जो आज एबिटा है और जो 3 साल पहले था, उस टाइम पे प्रोडक्ट का प्राइस 3 गुना था। जो आज चार्जर 5 लाख का बिकता है, उस टाइम 15 लाख का बिकता था या 10 लाख का बिकता था। आज वो 5 लाख का बिकता है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट तो कम हो गई, बट एबिटा आपको दिख रहा है जो वो बढ़ते हुए दिख रहा है। तो कुछ जो हम कर रहे हैं वो बात मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं कि हम कुछ अलग तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इनोवेशन है, थोड़ा सा इनोवेटिव आइडियाज हैं हमारे, कि हम प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल कॉस्टिंग पे काम नहीं कर रहे, हम प्रोडक्ट को काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हर बड़ी कंपनी कर रही है, कि आप और बेहतर कैसे बना सकते हैं कम रॉ मटेरियल यूज करके। दैट्स द थॉट। I agree to that, sir. But sir, like 3 to 4 years back, so the number of players in the like in the EV segment were very few. Like, but now as we see, the competition is increasing, sir. So that also will affect the margins, sir, because more players getting into the competition space then. तो जब आप कंपटीशन को देखना शुरू कर देते हैं ना, तो आप अपनी इनोवेशन से बाहर चले जाते हैं। फिर आप लड़ना शुरू करते हैं कि उसने इतने का बेचना है तो मैं कितने का बेचूंगा। और अगर आप मदमस्त होके अपनी थॉट प्रोसेस से खुद के लिए ही अपने बेंचमार्क बनाते हैं और अपने ही बेंचमार्क को बीट करते हैं, तो लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। तो हमारा थॉट ये है कि जो लोग सोच रहे हैं अभी जहां पहुंचने का सोच रहे हैं, हम उससे और आगे कैसे सोच सकते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं। That the product will speak for you, like than the price, sir. That's what I assume from the. You don't assume, you should feel कि हम, आप इसको अज्यूम ही मत करें सर, सचमुच जैसे ही होगा। हम यही करना चाह रहे हैं, बिल्कुल यही करना चाह रहे हैं। लोग कहेंगे कि सर्वोटेक का प्रोडक्ट सर्वोटेक ही होता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर कोई दिमाग मत लगाएं, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होता है। बस इसी को अचीव करना है। जिस दिन हिंदुस्तान में हर तरफ से हर कस्टमर से ये आवाज आ गई, हम मान लेंगे कि हमारा मिशन पूरा हो गया प्रोडक्ट की क्वालिटी लेवल पे। Right. Sir, in Q1, sir, we had filed around 3 patents. Sir, can you just give me a glimpse of what is on what stage are they currently right now, or something on more about the building on that? सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये सब ना अवेलेबल है, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट। उसका स्टेटस क्या है सब कुछ आप देख सकते हैं। तो उसके स्टेटस तो मैं भी अपडेट नहीं हूँ, रोज मैं भी नहीं देखता हूँ। डाल दिया है, टाइम लगता है, उसका एक स्टैंडर्ड टाइम है, उस टाइम के बाद ही हम उसकी रिपोर्ट लेंगे कि क्या स्टेटस है। तो अभी तो मैं इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको कि कितना टाइम लगने वाला है क्या है। जब आप डाल देते हैं तो उससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि आपने डाल दिया, कोई दूसरा नहीं डाल सकता। अब इसके बाद जो गवर्नमेंट और बाकी बायलॉज की जो भी टाइमलाइंस हैं, उसका मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है, तो वो मेरी R&D टीम या CTO जानता है। Sure, sir. बट आप मुझसे अगर ये सवाल पूछते हैं कि आप और कितने पेटेंट डालने वाले हो, तो शायद उस पर कुछ बात कर लेता। बट मैं ही आपको बता देता हूँ कि कुछ नए पेटेंट्स पे और काम चल रहा है। Okay, sir. Sure, sir. We'll like take an update from the website. So thank you, sir, for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. That will be the last question for the day. Now I hand over the call to the management for the closing remarks. हेलो, आप सभी का हमसे सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सवाल आपने पूछे हैं, मेरा मानना है वो आपके सवाल इंडिविजुअल जरूर रहे होंगे, लेकिन उन्हीं सवालों से और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने इस कॉल को सुना, उनकी बहुत सारी दिमाग में जो सवाल रहे होंगे या जो कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर हुए होंगे। और जो लोग नहीं सुन पाए हैं वो शायद इसको हमारी वेबसाइट पे या NSE की साइट पे जब भी अपलोड होगा वो भी सुनेंगे, तो भविष्य में भी बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी उनको मिलेगी। यही सब कह के मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं सभी को, और हम सबके साथ जुड़ने में और हम पे विश्वास रखने में के लिए मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। शुभ दीपावली। Thank you, members of the management. Ladies and gentlemen, on behalf of Ventura Securities, that concludes this conference.
Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.